students, welcome to JPIC Digital Study. Students, today we are going to read about the sound of music written by Deborah Cowley. She was a very well-known broadcaster of CBC Radio, Washington. She was also an editor. She had written many articles. She had written 100 articles of Reader's Digest, which has been translated into many languages. She was a very good editor. She had written many articles. Some of her articles named were Caro, a practical guide, Lucille Teasdale, Doctor of Courage, and One Woman Journey, a portrait of Pauline Vanier and George Vanier, the soldier. These are very interesting articles written by her. The prescribed lesson, the sound of music. In this article, she had written about the Evelyn Glynn and the Star of Sinai, Bismillah Khan. The first part of the lesson, we are going to learn about the Evelyn Glynn. She was not able to hear, but she every time realizes the music beside her. So students, come and see your textbook and know about the Evelyn Glynn, the musician. Listen carefully. Russ, our crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Rush our crowd jostled for position on the underground train platform. Rush our crowd, भागती हुई भीड़ में जोसिल फॉर पोजीशन मीन्स अपने को स्थापित करने के लिए जोसिल मीन्स धक्का मुक्की करना, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म में, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे. A slight girl looking younger than her 17 years मीन्स एक दुबली पतली लड़की जिसकी उम्र 17 साल की थी, वह अपनी उम्र से भी कम उम्र की दिख रही थी. was nervous और बहुत ही नर्वस थी, परेशान थी. yet excited और परेशानी के साथ साथ एक्साइटेड भी थी. as she felt the vibration of the approaching soon, जैसे ही उसने आने वाली ट्रेन के कंपन को का एहसास किया. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music, क्योंकि उसे रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इंग्लैंड के इस म्यूजिक स्कूल में जाना था और वहां जाने के लिए वह बड़ी ही ईगर थी. एंड डांटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, और अन्य किसी कम उम्र के व्यक्ति की तरह पहले दिन जाना था, इसलिए उस भयावह स्थिति से उस थोड़ी डर भी रही थी मन में. बट दिस इंस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंजर देन मोस्ट. लेकिन जो यह आकांक्षी संगीतज्ञ थी, एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग में सकता है आकांक्षी, महत्वाकांक्षी, म्यूजिशियन संगीतज्ञ, यह आकांक्षी संगीतज्ञ जो थी फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट मीन्स अन्य लोगों की अपेक्षा इसको ज़्यादा बड़े चैलेंज को फेस करना था, ज़्यादा बड़ी चुनौती का सामना करना था. शी वाज प्रोफाउंडली डेफ, क्योंकि वह पूर्ण रूप से बहरी थी. एवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे. एवलिन ग्लैन ने अपनी जो सुनने की शक्ति थी उसको धीरे धीरे खोया था. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. Her mother remembers noticing, उसकी माँ उस चीज का ध्यान करती हैं. Something was wrong. जब वो 8 साल की हुई तब उसकी माँ को ध्यान आया कि कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है. When the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano.
8 साल की एवलिन ने पियानो की ध्वनि सुनने के बारे में इंतजार किया। They called her name and she did not know, क्योंकि उस समय वे उसका नाम बुला रहे थे पियानो बजाने के लिए, लेकिन उसने नहीं सुना। I suddenly realized she had not heard. मुझे एकाएक एहसास हुआ था कि उसने नहीं सुना। से इजाबेल ग्लेनी, इजाबेल ग्लेनी ने, जो एवलिन ग्लेनी की माँ थी, उन्होंने कहा, For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends. For quite a while means कुछ समय तक तो एवलिन managed to conceal, एवलिन ने अपने बहरेपन को अपने दोस्तों और शिक्षकों से छुपाने का प्रयास किया। But by the time she was 11, लेकिन जब वह 11 साल की हुई, her marks had deteriorated and her headmistress asked her parents to take her to a specialist. जब वह 11 साल की हुई तो उसके जो अंक थे वह कम आने लगे और उसकी जो प्रधानाध्यापिका थी उसने एवलिन के माता पिता को बुलाया कि वह ले जाएं और उसको किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलवाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. धीरे धीरे नसों की शक्ति कमजोर होने के कारण क्या हुआ कि उसकी जो सुनने की शक्ति थी वह धीरे धीरे कमजोर होती गई। They were advised, उन्हें यह सलाह दी गई थी that she should be fitted with hearing aids, कि वह जो सुनने वाले श्रव्य सामग्रियां होती हैं, सुनने के जो साधन होते हैं, उनसे वह सुनने में सफल हो सकती है। And sent to a school for the deaf, और उसको एक बहरों के स्कूल में भेजा गया। Everything suddenly looked black, says Evelyn. एवलिन ने कहा, ये कहे मेरे चारों ओर अंधकार जैसा प्रतीत हुआ, मुझे लगा कि मेरे लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। But Evelyn was not going to give up, लेकिन एवलिन इसको त्यागने वाली नहीं थी, वह इतनी आसानी से इसको छोड़ने वाली नहीं थी। She was determined to lead a normal life, वह एक सामान्य जीवन जीने के लिए उद्यत थी। And pursue her interest in music, क्यों उद्यत थी? क्योंकि उसकी जो रुचि थी वह संगीत की तरफ थी। One day she noticed a girl playing a xylophone, एक दिन उसने यह नोटिस किया कि कोई लड़की जाइलोफोन के साथ खेल रही है। जाइलोफोन एक तरह का म्यूजिक एसेट होता है। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और उसने निर्णय किया कि वह भी इस जाइलोफोन को बजाना चाहती। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, अधिकांश शिक्षकों ने उसका डिस्करेज किया, उसको डिमोरलाइज किया। बट परकसिस्ट रॉन फॉक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन जो रॉन फॉक्स थे, ढोल और तबला वादन के जो शिक्षक थे, रॉन फॉक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल मींस होता है द एबिलिटी, उन्होंने एवलिन की योग्यता को पहचान लिया। परसुएसिस्ट मींस होता है ढोल एंड तबला वादक। ही began by tuning two large drums to different notes, उन्होंने अलग अलग ध्वनियों में दो बड़े बड़े ड्रम को बजाना शुरू किया। Don't listen through your ears, और कहा कि इसे अपने कानों के द्वारा सुनने का प्रयास मत करो। Try to sense in some other way, इसको किसी और तरीके से समझो। Says Evelyn, एवलिन ने कहा, Suddenly I realized I could feel the higher drum from the bass top, उसने कहा कि ये कहे मुझे जो बड़ा वाला ड्रम था उसके कंपन की आवाज सुनाई पड़ी, महसूस हुई। एंड द लोअर वन फ्रॉम द बेस डाउन, मैंने देखा कि जो बड़ा वाला ड्रम था मेरे कमर के ऊपर था और जो छोटा था उससे छोटा था, कमर के नीचे था। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने फिर से वही कार्य दोहराया, वही एक्सरसाइज किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और एवलिन को एहसास हो गया, जान लिया दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि उनके उन ड्रमों को टच करते ही उसके शरीर पर कुछ दूसरे तरह का एहसास हो रहा है। जब बड़ा वाला टच करते थे कुछ दूसरी तरह का कंपन और छोटा टच करने पर दूसरी तरह का कंपन। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना सीख लिया था। एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, मस्तिष्क और शरीर को वाइब्रेशन
वाइब्रेशन मीन्स कंपन के द्वारा ध्वनि को महसूस करना सिखा दिया था। द रेस्ट was sheer determination and hard work, और बाकी का जो कार्य पूर्ण हुआ वो मेरे पूरी तरह से उस कार्य के लिए लगाव और एक दृढ़ संकल्प ने कर दिया था। She never looked back from the point onwards, और उसने कहा कि उसके बाद से फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with the youth orchestra, एक युवकों के ऑर्केस्ट्रा के साथ उसने यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया। एंड by the time she was 16, और उस समय वह 16 वर्ष की थी, she had decided to make music her life, और उसी क्षण उसने संगीत को ही अपना जीवन बनाने का निर्णय ले लिया था। She auditioned for the Royal Academy of Music, उसने म्यूजिक की रॉयल अकेडमी के लिए पहला प्रदर्शन किया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और उस अकेडमी के इतिहास का सबसे श्रेष्ठ अंक उसने अर्जित किया। She gradually moved from orchestral work to solo performance, धीरे धीरे उसने ऑर्केस्ट्रा में प्रदर्शन करने से अपने को एकल प्रदर्शन की ओर बढ़ाया। मीन्स ग्रुप में प्रदर्शन के बजाय उसने अपना स्वयं का अकेला प्रदर्शन करना शुरू किया। एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स, और अपने 3 वर्ष के कोर्स के 3 वर्ष के पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने अधिकांश जो टॉप क्लास के अवार्ड्स थे उसको उसने गेन कर लिया था, पा लिया था। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, और इसको इन सब के लिए एवलिन किसी भी तरह के श्रेष्ठ अचीवमेंट को नहीं समझती। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, वो कहती है कि यह कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं। वो कहते हैं कि अगर आप किसी कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प हो जाएंगे तो एक न एक दिन आप उसको अचीव कर लेंगे, यह बहुत भारी भरकम काम नहीं होता। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह ठीक चोटी पर भी सबसे ऊंचाई पर पहुंची। द वाज मोस्ट sought आफ्टर मल्टी परसुएट्स विद द मिस्ट्री ऑफ some 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, वह उस तबला और ढोल वादक के जो श्रेष्ठ तबला और ढोल वादक थे, उन श्रेष्ठ संगीतज्ञों में सबसे ऊंचाई पर उन्होंने स्थान बना लिया। और जो इससे संबंधित जो रहस्यमयी उपकरण हुआ करते थे संगीतों के, उनको भी उसने बजाना सीख लिया था, और उनकी ख्याति जो थी वो अंतरराष्ट्रीय हो गई थी। मीन्स वो अपने देश में न रहकर पूरे विश्व में इसके लिए प्रचलित हो गई थी। इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन शो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इट इज इंट्रिग्यूइंग मीन्स अट्रैक्टिंग, यह आकर्षक था टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, बिना सुने हुए एवलिन का किसी भी उपकरण के साथ उनका कार्य किया जाना, उनका उसको बजाना एक आकर्षण का विषय था। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, और हमारे 2 घंटे के बातचीत में उन्होंने एक शब्द भी नहीं छोड़ा। Men with bushy beard give me trouble, she laughed, वह हंसी, उसने कहा कि बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले ने मुझे परेशानी में डाला। It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. यह केवल It is not just watching the lips, यह केवल होंठ नहीं देख रही थी बल्कि पूरा चेहरा और उसकी आंखें देख रही थी। She speaks flawlessly with a Scottish lilt, वह स्कॉटिश लहजे में बड़े ही flawlessly means बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के बोल रही थी। My speech is clear, मेरे शब्द स्पष्ट है। Because I could hear till I was 11, क्योंकि मैं उन्हें तब से समझ सकती हूँ जब मैं 11 वर्ष की थी। उसने कहा, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी व्याख्या करना संभव नहीं है कि किस तरह से उन्होंने फ्रेंच और जापानी भाषा सीखा था। As for music, she explains, it powers through every part of the body. उन्होंने कहा कि संगीत मेरे शरीर के अंग अंग में बसा हुआ है।
It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. वह कहती है कि यह मेरे रोम रोम को रोमांचित कर देता है. When she plays the xylophone, she senses the sound passing up and stick into her fingerprints. वह कहती है कि जब मैं जाइलोफोन बजाती थी तो मेरी उंगलियों की हरकत से मैं उसके संगीत को महसूस कर सकती थी. By learning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. और जब वह ढोल को बजाती है तो कहती है उसके कंपन के साथ उसकी ध्वनि की गूंज को मैं अपने शरीर पर महसूस करती थी. On a wooden platform, she removes her shoes. वह एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म में, लकड़ी के जगह स्थान पर, लकड़ी से बनी हुई जगह पर अपने जूतों को निकालती थी. So that the vibration pass through her bare feet and up her legs. जिससे कि जो ध्वनि का, जो संगीत ध्वनि का कंपन है उसके पैरों से होकर के उसके शरीर तक पहुंच सके. Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year award. She says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. His master says, her master says that she can realize the music. वो कहते थे कि भले ही वह संगीत को सुन नहीं पाती थी, लेकिन उसके कंपनों के जरिए वह उसको महसूस कर लिया करती थी, समझ लिया करती थी. और इस तरह से आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्होंने अपने जीवन में जो उनके ऑडियंस थे, जो उनके श्रोतागण थे, उनको उन्होंने बहुत ही अधिक प्रसन्न किया, उनको खुश करने का वह कारण बनी. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work. Evelyn बताती है, कन्फेस करती हैं कि उनको लगता था कि उनको कार्य की लत लग गई, इन्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए. Just got to work, मुझे काम करना चाहिए, हर क्षण उनकी सोच रहती थी. Often harder than classical music, कहती थी क्लासिकल म्यूजिक के बजाय और कठिन संगीत के लिए उसे कार्य करना चाहिए. But the rewards are enormous. लेकिन जो इसका परिणाम होगा वह क्यों होगा, क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो इसका परिणाम है वह enormous मीन्स विशाल होने वाला है. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives up free concerts in prisons and hospitals. अपने नियमित संगीत प्रोग्राम के साथ साथ उन्होंने हॉस्पिटल और जेलों के लिए मुफ्त में कार्यक्रम देना शुरू किया. She also give high priority to classes for young musicians. और जो नवयुवक संगीत थे, सीखने वाले संगीत जो हुआ करते थे, संगीत सीखने वाले जो बच्चे हुआ करते थे, उनको वो प्राथमिकता दिया करती थी. And reaching of the Beethoven Fund for Deaf Children says, जो एन रिचिल जो बहरे बच्चों के लिए जो फंड इकट्ठा करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने कहा सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, कि वह बहरे बच्चों के लिए एक चमकता हुआ सितारा थी, चमकता हुआ एहसास थी. दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो. वे उनको मिलकर वो समझ लेते थे कि ऐसी कोई चीज नहीं जिसको वह गेन न कर सकें. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She had given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to the millions. Evelyn Glennie, जो कि ऑर्केस्ट्रा में सबसे आगे खड़ी होकर के उस ड्रम को बजाया करती थी और उसके संगीत को महसूस करते हुए कंपनी के द्वारा लोगों को अपने उस संगीत से भी डिलाइट किया करती थी, प्रसन्न किया करती थी. और वह कहती हैं कि मैं लोगों को देखकर यह एहसास कर लिया करती थी कि अगर वह इसको कर सकते हैं तो मैं भी इसको कर सकती हूँ, भले ही मैं हैंडीकैप्ड हूँ, विकलांग हूँ, मुझे कानों से सुनाई नहीं पड़ता है. और लोग जो उसे देखते थे वह कहते थे कि यह बड़ी ही योग्य लड़की, और अपने इन कृत्यों से न उन्होंने स्वयं को बल्कि बहुत से लाखों की संख्या में अपने जो ऑडियंस थे उनको उन्होंने प्रसन्न किया, उनकी प्रसन्नता का वह कारण बनी. It's your lesson. We will meet with the second part of this lesson in the next video. Till then, thanks.